take up the topic of process of recombinant DNA. In this topic, we will discuss the process which involves, first of all, we have three steps almost in this topic: isolation of recombinant DNA molecule. First, isolation and separation of recombinant DNA molecule, or you can say DNA. Okay. Second is that of cutting of DNA. Second is cutting of DNA. Cutting of DNA at specific points. And then third, we have amplification of gene of interest using PCR. So today we will take up these three topics in the subtopic of recombinant DNA technology. Okay. So first of all, we will discuss about the isolation of genetic material. Isolation of genetic material, or isolation and separation, you can say isolation of genetic material. So let me tell you, the process of recombinant DNA technology involves different steps, which I have mentioned here. And these steps are, first of all, isolation of genetic material from a cell. Secondly, separation of that genetic material. And third, the process of cutting of this genetic material, whether it is plasmid DNA or the foreign DNA, into different pieces. And then amplification of that desired gene of product that was cutted by this recombinant restriction endonuclease. That will be amplified into the number of copies. It means sometimes 1 billion copies that is through PCR. And then fourth, insertion of that genetic material, that is foreign DNA, into a host. And then last, we will discuss about the obtaining foreign gene products. What will be the products of that foreign gene that will be isolated in the last section. Okay, let me explain the isolation of genetic material. Isolation of genetic material. Before that, I would like to explain this structure in some briefly. First of all, what is the foreign DNA? You know, the foreign DNA is the desired DNA we want to insert into host organism. Okay. Then the vector DNA, you know, it may be plasmid or bacteriophage, we have discussed earlier. And in this section, what will we do? The foreign DNA will be, and the vector DNA will be cut out into pieces by the same restriction endonuclease. Here it has been cut out into different pieces, the plasmid as well as the foreign DNA. This is the first step. And then second step will be to join this foreign DNA or the gene of interest into the plasmid DNA through DNA ligases. So as a result of which a DNA or recombinant DNA is formed. This is our recombinant DNA after joining the foreign DNA in the plasmid DNA. Okay. Then this recombinant DNA will be transferred into a E. coli cell. This process is known as transformation. This process is known as transformation. We have different techniques we will discuss later on to transform that foreign DNA or the recombinant DNA into the host cell, that is E. coli. Then this E. coli cell will multiply, and large copies of E. coli cell, that will be the large copy, as a result of which large copies or of our foreign DNA will be obtained. Okay. So this was the step of recombinant DNA technology. So first of all,
I will discuss about isolation of genetic material, how the genetic material in an organism can be isolated. So we can isolate the genetic material from bacterial cell, animal cell, plant cell, fungal cell or different organisms. ठीक है, फ्रॉम कोई भी ऑर्गेनिज्म से हम उस जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर सकते हैं. ओके, सो वो कौन सा हम आइसोलेशन करेंगे? द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस किस्म का हम जीन चाहते हैं, जिस किस्म का कैरेक्टर हम किसी और ऑर्गेनिज्म में देखना चाहते हैं, उसी जीन को हम क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे. तो ये आइसोलेशन कैसे करेंगे? एक सेल के अंदर आप जानते हो उसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होता है, या प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में आप देखोगे उसके बाहर एक आप जानते हो कि सेल वॉल होता है. ठीक है, फिर उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. स्पेशली वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, आरएनए और प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद दैट डीएनए. सो उन सब के चुंगल में से, उनमें से वो फंसा हुआ होता है डीएनए अंदर जाके, उनके चुंगल में से हमको उसको बाहर निकालना है. ठीक है, सो वो प्रोसेस हम कैसे करेंगे? दैट प्रोसेस विल बी डन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स. ओके, सो व्हाट विल बी दोस एंजाइम्स? वो कौन कौन से एंजाइम है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम कैसे करेंगे? पहले जो है, अगर हमें सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना है, किसमें? इन केस ऑफ एग्जांपल बैक्टीरियल सेल में अगर हम सेल वॉल को ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे करेंगे? बैक्टीरियल सेल में दैट विल बी डन बाय द एंजाइम नाउन इज लाइसोजाइम. Lysozyme will break down the bacterial cell wall. Okay, then we have next, अब बैक्टीरियल सेल वॉल को लाइसोजाइम से हमने काट दिया एग्जाम्पल. अब हमारे पास फंगस सेल है, एग्जाम्पल फंगस सेल से हमें डीएनए को निकालना है, तो फंगस सेल में हम क्या ऐड करेंगे? फंगस सेल में हम ऐड करेंगे काइटिनेस एंजाइम. ओके, कौन सा? काइटिनेस एंजाइम. आप जानते हो प्लांट सेल में, जैसे अगर कोई प्लांट से हमें निकालना है डीएनए को, तो प्लांट सेल को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कौन सा चाहिए? सेल वॉल को. उसमें सेलुलोज का बना होता है, तो कुदरती बात है सेलुलेस एंजाइम. सेलुलेस एंजाइम जो है क्या करेगा? ये ब्रेक डाउन करेगा किसको? प्लांट सेल वॉल को. ठीक है, सो देयर आफ्टर अगर हम सेल वॉल ब्रेक डाउन करने के बाद हम जब अंदर पहुंचते हैं, वहां पर बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं. स्पेशली वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स हमारे पास होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं. सो द आरएनए which remains associated with the DNA, example in side by side, the RNA can be removed by using ribonuclease enzyme, and the DNA or the proteins which remain associated with the DNA, you know, in case of eukaryotic cell which is known as histone protein, histones. ठीक है, सो उससे क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम बनता है, उसका एक अलग टॉपिक है. देन द proteins which remain associated with the protein, कौन से proteins? Histone proteins, they can be removed by using protease enzyme. After addition of large number of such enzymes, as a result of which the DNA precipitates out by applying the chilled ethanol मतलब ठंडा एथेनॉल अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो डीएनए विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट. As a result of which the DNA will be precipitated out after adding chilled alcohol. कौन सा? chilled alcohol. ठीक है, अगर हम उसमें chilled alcohol ऐड करेंगे तो DNA will be precipitated out. ठीक है, so this was all about isolation of genetic material. Okay, then we have next topic, that is कटिंग ऑफ डीएनए. देखो आइसोलेशन हमने यहां पर किया, ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गए. कौन कौन सा आइसोलेट किया हमने? यहां पर एग्जांपल डीएनए आइसोलेट किया. कौन सा डीएनए आइसोलेट किया? फॉरेन डीएनए एज वेल एज द दिस प्लाज्मिड डीएनए और वेक्टर डीएनए. देन सेकंड वी हैव, दूसरा हमारे पास क्या है? कटिंग ऑफ डीएनए. ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. कटिंग ऑफ DNA at specific
location. So the cutting of DNA is achieved by कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं कटिंग ऑफ डीएनए को? आफ्टर देखो हमारे पास जैसे कि आप जानते हो पहले हमने प्रोसेस किया, कौन सा किया, डिफरेंट एंजाइम जो ऐड किए, उसके बाद हमारा क्या मिला, प्रेसिपिटेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए को हमने बाहर निकाला। उस प्यूरिफाइड डीएनए को बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, हम उस प्यूरिफाइड डीएनए को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के साथ इंक्यूबेट करेंगे। क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के साथ इंक्यूबेशन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो वो इंक्यूबेशन करने के बाद द रिस्ट्रिक्शन, हमने इसको डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस विल कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए इन द स्पेसिफिक लोकेशंस दैट इज identified sequences, okay, yeah, recognition sequences which are known as polyandromic sequences. We have discussed it in earlier, ठीक है, हमने उसमें डिटेल में पढ़ा है। आपको मैंने टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पढ़ाया है इससे पहले, ठीक है, तो उसमें हमने डिटेल में पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कैसे काम करता है, ठीक है। द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस व्हिच एक्ट्स एज बायोलॉजिकल सीजर्स विल कट द फॉरेन डीएनए as well as the vector DNA in the specific recognition sequences or polyandromic sequences. Fasting, ठीक है। दूसरा हम क्या काम करेंगे यहां पर, दूसरा काम करेंगे the cut out restriction endonuclease, the cut out pieces of foreign DNA as well as the plasmid DNA, their progression can be checked, कितना डाइजेशन हो रहा है, that can be checked by the process or a technique known as gel electrophoresis, ठीक है। सो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम उसमें अप्लाई करते हैं, परसों मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वहां पर अप्लाई करते हैं। वो इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने के बाद यू नो द डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड, ठीक है। देयर आफ्टर वी अप्लाई व्हाट वी अप्लाई, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसमें अप्लाई करते हैं। उसके बाद डिफरेंट बैंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड, उन बैंड्स को हम बाद में क्या करते हैं, उसको पूरी तरह देखते हैं, देखने के बाद उनको सेपरेट करते हैं। तो यहां पर दो चीजें होती, एक तो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, दूसरा हम क्या करते हैं, इनको ये जो है अपने साइज के हिसाब से, जितना स्मॉलर साइज होगा उतना ही ये फास्ट क्या होगा, वहां पर मूवमेंट होगा, ठीक है। तो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है वो अलग हो जाएंगे, लार्ज फ्रेगमेंट जो है अलग हो जाएंगे। दैट इज द सेपरेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और कटिंग के बाद, ओके। सो द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के साथ हम क्या करेंगे, प्यूरिफाइड डीएनए को, प्यूरिफाइड डीएनए जो हमने निकाला था उनको इंक्यूबेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन करने के बाद फिर हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे, जब ये प्यूरिफाइड डीएनए उसको डाइजेस्ट करेगा, मींस उसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू डिफरेंट पीसेस, किसको प्यूरिफाइड डीएनए को रिस्ट्रिक्शन क्या करते हैं, यानी कि डाइजेशन होने का प्रोग्रेस को हम कैसे देखते हैं, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, कितना डाइजेस्ट हो रहा है, कितने पीसेस वो बन रहा है, दैट इज उसको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, बाय यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है। फोरेसिस टेक्निक जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने के बाद वो मूवमेंट करता है डीएनए जो है किसकी तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड की तरफ, ठीक है। उसके बाद उनको एज सिव सिस्टम के जरिए हम वहां पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो इस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट इज फॉरेन डीएनए, और यू कैन से प्यूरिफाइड डीएनए, फॉरेन प्यूरिफाइड डीएनए इज लिंक्ड विद द किसके साथ, प्लाज्मिड डीएनए बाय यूजिंग द डीएनए लिगेस। सो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है, डिजायर्ड जीन है, उसको हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं किसके साथ, वेक्टर के साथ। दैट एग्जाम्पल वी हैव द प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है, थ्रू बाय यूजिंग कैसे, लिगेस एंजाइम, डीएनए लिगेसिस,
कौन सा एंजाइम यूज करते हैं हम यहाँ पर? लिगेस एंजाइम जो है यूज करते हैं, विच ज्वाइंस द स्टिकी एंड्स, यू नो द स्टिकी एंड्स। जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटता है तो दोनों उसमें क्या बचते हैं, फॉरेन एज वेल एज प्लाज्मिड डीएनए में स्टिकी एंड्स बचते हैं। वो स्टिकी एंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ज्वाइन करते हैं, पॉलीएंड्रोमिक होते हैं और ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ gene of interest using PCR. PCR stands for polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Okay. So I will draw a diagram. ठीक है. So इस DNA को हम क्या करेंगे? दूसरा काम, यहां पर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इस प्रोसेस बनते हैं इसके, ये पहला स्ट्रैंड आ गया आपका और ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, उसके बाद दूसरा जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं यहां पर, वो प्रोसेस है आपका यूजिंग प्राइमर्स। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं? प्राइमर्स ऐड करते हैं। दीज आर द प्राइमर्स। So we have 5' end, 3' end, ठीक है, 5', here we have 3' end, 5', 5' end, 3' end. So these are the, ये क्या है हमारे प्राइमर्स, ये क्या है? प्राइमर्स है। ठीक है, इस प्राइमर्स को ऐड करने के बाद दूसरा जो हमारा प्रोसेस है, दैट इज, इस प्राइमर्स को ऐड करने को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एनीलिंग। क्या बोलते हैं? एनीलिंग बोलते हैं। ठीक है, प्राइमर्स क्या होते हैं मैं आपको अभी बताता हूं। फिर तीसरा प्रोसेस, ये जो प्राइमर्स हमने ऐड किए, वो प्राइमर्स क्या होंगे? दैट विल बी एक्सटेंडेड, दोस प्राइमर्स विल बी एक्सटेंडेड। हियर वी हैव द प्राइमर्स extension, okay, 5', 3', 3', 5'. Then this one also, ये भी क्या होगा हमारा? एक्सटेंड होगा। यहां इसे सेम प्रोसेस, ठीक है, तो यहां पर 5' end, 3' end। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। तीसरा प्रोसेस, ठीक है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होने के बाद हमारा लास्ट प्रोसेस क्या होगा? द डिफरेंट कॉपीज, दैट इज 1 बिलियन कॉपीज ऑफ दिस फॉरेन डीएनए विल बी ऑब्टेन्ड। कितने मिलेंगे हमें? अगर हम इसको प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो इसकी 1 बिलियन क्या मिलेंगी हमें? कॉपीज मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट जो हमारा डीएनए बन गया है ना। सो अगर इसको हम रिपीट करेंगे, क्या करेंगे? रिपीट 30 टाइम्स। सो इसमें क्या मिलेगा हमारे पास? 1 बिलियन कॉपीज इसकी मिलेंगी। ठीक है, कितनी मिलेंगी? 1 बिलियन कॉपीज। ओके, सो देखो हमारा तीसरा जो प्रोसेस है, दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। सो व्हाट इज पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें 3 प्रोसेस हैं। पहला है हमारा डीनेचुरेशन। क्या करते हैं हम लोग? जो डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने निकाला था डीएनए, उसको डीनेचुरेशन करते हैं, हाई हीट शॉक देते हैं, उसके बाद 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर 2 स्ट्रैंड अलग हो गए। मेन इंपॉर्टेंट यहां पर हम क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन में प्राइमर्स यूज करते हैं। सो व्हाट आर द प्राइमर्स? दीज आर द एक्सटर्नली प्यूरिफाइड और प्रिपेयर्ड शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, which are added into the denatured
DNA molecule, that is both the strands, ठीक है। यहाँ पर 3 days and 5 days 5 days 3, so these primers जो है हम बाहर से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं और शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स को प्रिपेयर करते हैं, फिर वहां पर मीडियम में अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्राइमर्स हैं, आफ्टर दैट वी एड DNA न्यूक्लियस एंजाइम, कौन सा, पॉलीमरेज एंजाइम। यहां पर जब हम DNA पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करते हैं, ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, इन प्राइमर्स को एक्सटेंड करता है, मींस ये यूज करता है न्यूक्लियोटाइड्स को, जहां पर, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करता है, उसके बाद इसको एक्सटेंड करता है ना, बाय यूजिंग टेम्पलेट DNA, ठीक है। जीनोमिक DNA इज टेम्पलेट, ये जो जीनोमिक DNA इसको टेम्पलेट DNA यूज करता है, ये इसको फिर एक्सटेंड करता है प्राइमर्स को, कौन, DNA पॉलीमरेज, ठीक है ना। उसके बाद एक्सटेंड करने के बाद, अगर हम इसको एक्सटेंशन, ये हो गया, एक्सटेंशन करने के बाद इस साइकिल को, मींस रेप्लिकेशन को 30 टाइम्स अगर हम रिपीट करेंगे, तो इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट के हमें कहा 1 बिलियन कॉपीज लगभग तैयार होंगी, ठीक है। 30 टाइम्स अगर रिपीट करेंगे, सो 1 बिलियन कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा यहां तक। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया। उसके बाद हम सेकेंड जो है पार्ट इसी का शुरू करेंगे, प्रोसेस का, वो उसके बाद फिर कंप्लीट होगा हमारा टॉपिक। थैंक यू।